یہ دوبارہ سے بیٹا میں ایک دفعہ ریویو کر رہا ہوں، ذرا اچھی طرح سے میری بات کو دھیان سے سنیے گا بیٹے کہ ذکر جو ہے، اب بیٹا آپ ایکسکیوز می سر، کسی بچے نے بولنا نہیں ہے بیٹا، آپ نے ایک دفعہ دھیان سے سننا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ذکر کیا ہے اور ذکر کی اقسام کیا؟ سب سے پہلی بات بیٹا جو ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد، اللہ کی یاد میں محو مصروف رہنا، اللہ کو بار بار یاد کرنا، اس کو کہتے ہیں ذکر۔ اور ذکر کی بے شمار اقسام ہیں، جن میں سے اللہ کی یاد جو ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ کو بار بار یاد کرنا، اللہ کی یاد میں محو مصروف رہنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل دماغ میں ہر وقت جگہ دینا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اور ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال جو ہے وہ مردہ کی سی ہے۔ ذکر جو ہے وہ بیٹا، ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا، یعنی اجر و ثواب کی نیت سے اپنے دل، زبان اور عمل سے اسے یاد کرنا۔ ذکر کی فضیلت قرآن کریم کی روشنی میں قرآن ہمیں بار بار ذکر کے بارے میں متنبع کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، اور ہمیں بار بار یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کے سکون کے لیے ذکر الہی کو ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ دلوں کا اطمینان نہ گانا سننے میں ہے، نہ کسی اور چیز میں ہے۔ آپ ساری دنیا گھوم آئیں، آپ کے دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بینک بیلنس ہو تو سکون ہوتا ہے، گاڑیاں ہوں تو سکون ہوتا ہے، اچھا بنگلہ ہو تو سکون ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں کہوں کہ پیسے میں عزت ہے، پیسے میں رسپیکٹ ہے، مال و زر میں رسپیکٹ ہے، دلی سکون ہے، دلی اطمینان ہے، تو یہ میری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو سورۃ الرعد ہے، آیت نمبر 28 ہے، اللہ نے خبردار کہا، اللہ کا لفظ لگا کے، اگر کہتا بذکر اللہ تطمئن القلوب تو بات پھر بھی سمجھ آ سکتی تھی کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، بلکہ اللہ نے اللہ کا لفظ لگا کے مجھے آپ سب کو متنبع کیا، خبردار کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان میسر آتا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں اگر ہم بطور مطالعہ کریں تو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے، میرے اور آپ کے خالق و مالک نے مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، مجھے یاد کیا کرو۔ اللہ کتنا؟ فرمایا ذکرن کثیرا، مجھے کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، وسبحوہ، میری پاکی بیان کیا کرو، میری تسبیح کیا کرو، بکرتم و اصیلا، صبح بھی میری پاکی بیان کرو، شام بھی میری پاکی بیان کرو۔ اللہ اگر ہم صبح بھی تمہیں یاد کریں، شام کو بھی کیا تمہیں یاد کریں، تو اللہ ہمیں کیا فوائد و ثمرات اس کے حاصل ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصلی، وہی وہ اللہ ہے، اللہ کہتے ہیں صبح شام مجھے یاد کرنا، میرا ذکر کرنا تیرا کام ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، میں اپنی طرف سے تمہیں سلام بھیجوں گا، تم مجھے ذکر کرتے ہو، فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ اور پھر فرمایا والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اگر تم مجھے صبح اور شام یاد کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ والذی یصلی علیکم، اللہ کا سلام آئے گا، ذکر کرنے والے کو اللہ کا سلام، اور صرف یہی پہ بات ختم نہیں، وَمَلَائِكَتُهُ، اور میرے فرشتے بھی تمہیں سلام بھیجیں گے۔ اور تیسرا فائدہ، پہلا فائدہ یہ ہوگا صبح شام ذکر کرنے کا کہ اللہ کی طرف سے سلام آئے گا، اور فرشتے بھی سلام کریں گے آپ کو، اس لیے کہ تم اللہ کو یاد کرتے ہو۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تمہیں روشنی اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے گا۔ کیا مقصد، کیا مطلب یہ کہ اللہ تمہیں گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر نیکیوں کے روشنی کی طرف، نیکیوں کی طرف تمہیں گامزن کرے گا۔ اور پھر فرمایا صحیح بخاری کے اندر
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। हजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्यि वल मय्यित। बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी के अंदर 6407 नंबर हदीस है। फरमाया जिक्र करने वाले की मिसाल जिंदा की सी है और जिक्र ना करने वाले की मिसाल मुर्दा की सी है। उसके बाद जिक्र की अकसाम है बच्चों, जिक्र की 3 अकसाम हैं। सबसे पहले किस्म जो है जिक्र कल्बी है, उसके बाद जिक्र लिसानी है, और तीसरी जिक्र की अकसाम जो है वो जिक्र अमली है। आइए इसकी थोड़ी सी डिटेल में आपके सामने रखता हूं। जिक्र कल्बी क्या है? दिल में, दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना, दिल ही दिल में अल्लाह को बार बार अल्लाह का तसव्वुर अपने ज़हन में लाना और अल्लाह की याद में महव मसरूफ रहना। दिल में ही, होंठ नहीं हिल रहे, देखने वाला नहीं समझ रहा, लेकिन कल्ब आपका जो है वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह की याद में आप मसरूफ रहें और अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखना, उसका डर दिल में रखना और नीयत को पाक साफ रखना। ये कल्बी जिक्र की चंद एक मिसालें हैं। उसके बाद जिक्र लिसानी है, जुबान से अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करना। ऊंची आवाज में भी आप कर सकते हैं, आहिस्ता आवाज में भी आप कर सकते हैं। अल्लाह को याद, अल्लाह की याद में मसरूफ रहना। तिलावत कुरान मजीद जिक्र लिसानी है, दुरूद शरीफ पढ़ना ये जिक्र लिसानी है। सुबह शाम की अज़कार हैं, जिक्र की जमा क्या होती है? अज़कार। ये सारे लिसानी जिक्र के अंदर आएंगे। और उसके बाद जिक्र अमली है, अमल के जरिए अल्लाह ताला को याद करना। जिक्र अमली है नमाज, अकीमिस्सलात लिज़िक्री, अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज ये भी मेरा जिक्र है। और उसके बाद रोजा, ये भी जिक्र की एक, अमली जिक्र की एक मिसाल है। और उसके बाद कसब हलाल, हलाल कमाना, ये भी जिक्र की किस्म है। और खिदमत खलक जो है ये भी जिक्र की अकसाम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा मुबारक में, उसवा हसना में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की कितनी मिसालें मिलती हैं। एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र इलाही कसरत से करते थे। आप रात के वक्त मुसल्ले पे खड़े होते और इतना अल्लाह का जिक्र करते, इतनी लंबी नमाज पढ़ते, और क्योंकि आपके पांव मुबारक जो थे उनके ऊपर वरम आ जाता। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए तो अल्लाह ने जन्नत लिख दी है, फिर आप इतनी मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या फरमाया? अफला अकून अब्दन शकूरा, अफला अकून अब्दन शकूरा। सही बुखारी है और हदीस का नंबर 1130 है। फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? उसके बाद मखसूस औकात की दुआएं, सुबह शाम के अज़कार और मखसूस मौके की बेशुमार दुआएं अहादीस में मज़कूर हैं। अफजल जिक्र आपने 9th क्लास में भी बेटा पढ़ा कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे फजीलत वाला अमल जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह में इतनी स्पिट है और इतनी ताकत है और इतनी जाज़बियत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 साला काफिर अगर सिद्क़ दिल के साथ एक दफा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ कर देता हूँ, सारी जिंदगी के गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। उसके बाद तस्बीह फातिमा है, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाती हैं और बाअदब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा जान, मेरे सब कुछ आपके ऊपर कुर्बान हो जाए, मैं सारा दिन चक्की पीसती हूँ और चक्की पीसने की वजह से मेरे हाथों के ऊपर निशान पड़ गए हैं, और मैं मशकीज़ा पानी का दूर से लेके आती हूँ जिसकी वजह से मेरे जिस्म के ऊपर जो है वो निशान पड़ गए हैं। तो आपके पास खादम आते हैं, आपके पास गुलाम आते हैं, तो आप एक गुलाम मुझे दे दें ताकि वो मेरे ये रोज़मर्रा के जो काम हैं उनमें मेरी मदद कर सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा बेटी, क्या गुलाम से अच्छी चीज़ ना दे दूँ? फरमाया, बाबा जैसे आप खुश, जैसे आप इरशाद फरमा दें। तो फरमाया, बेटी सारा दिन काम करने के बाद तुम थक जाती हो, तो तुम्हारे जिस्म के ऊपर जो है वो थकावट फील करती हो, तो सोने से पहले अपने बिस्तर के ऊपर बैठकर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह कहना, ये भी अल्लाह का जिक्र है जी।
और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़कर अपने हाथों के ऊपर फूंका करो। और फूंकने के बाद जब तुम फूंकोगी तो अल्लाह सारे दिन की जो थकावट है उसको दूर कर देगा। जिक्र ना सिर्फ इनफरादी जिंदगी का तज़किया करता है बल्कि मुआशरती बेहतरी की तरफ भी एक अहम कदम है। जिक्र करने से इंसान को हर दम अपनी तख्लीक का मकसद याद रहता है और ज़मीन पर अल्लाह ताला के निज़ाम को जारी और सारी रखने के लिए वो कोशां रहता है। अब नेक्स्ट आप अगर देखेंगे तो ये ज़रूरी है कि हम जिक्र करें तो हमें क्या फ़ायदा हासिल क्या होगा, जिक्र के फ़वाइद व समरात क्या हैं, हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। अजीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहला जो जिक्र का फ़ायदा हमें हासिल होगा उससे इत्मीनान क़ल्ब नसीब होगा। इत्मीनान क़ल्ब, हमारा दिल जो है वो परेशानियों से, पशेमानियों से और तमाम तर जो है वसवसों से पाक हो जाएगा और हमारे दिल को सुकून मुयस्सर आएगा। और ये सुकून, दिल का सुकून, इत्मीनान क़ल्ब, ये एक बहुत बड़ी दौलत है और नेमत खुदाबंदी है। अल्लाह ताला का कुरान ये कह रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, खबरदार कि दिलों का सुकून अगर चाहते हो तो फिर अल्लाह की याद में महव मसरूफ़ रहा करो। और उसके बाद नंबर 2 पे जो फ़ायदा हासिल होगा हमें, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। किस तरह कुर्ब हासिल होगा? फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ए मेरे बंदे तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। उसके बाद रिज़्क़ में बरकत होगी। अगर हम हर वक्त अल्लाह की याद में महव मसरूफ़ रहेंगे, हम कस्बे हलाल अगर कमा रहे हैं और कुछ हम काम कर रहे हैं तो अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहेंगे तो हमारे रिज़्क़ में जो है वो बरकत हासिल होगी। और उसके साथ साथ दुआ की कबूलियत होगी। जो हम दुआ करेंगे अल्लाह उसको फ़ौरन कबूल करेगा। लेकिन किस वजह से, क्यों अल्लाह कबूल करेगा? इसलिए कि हम अल्लाह की जिक्र में महव मसरूफ़ रहेंगे। जन्नत का हुसूल है जी। इसके बाद जन्नत हासिल अगर हम करना चाहते हैं तो फिर हमें ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहना चाहिए। तज़किया नफ्स, हमारा जो नफ्स है, जो नफ्स इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स जो है इंसान को बुराई की तरफ आमादा करता है। और जब इंसान अल्लाह की याद में महव मसरूफ़ रहता है तो उससे फ़ायदा हासिल ये होगा कि इंसान का तज़किया नफ्स होगा, इंसान का नफ्स जो है वो पकीज़गी की तरफ आएगा। मग़फ़िरत का बेहतरीन ज़रिया जो है वो ज़िक्र इलाही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। ज़िक्र क्या है, ज़िक्र की कितनी अक़साम हैं और ज़िक्र करने से क्या फ़वाइद व समरात हासिल होते हैं। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम।